वेलकम अगेन। नाउ अब हम देखेंगे मॉड्यूल 1 जो कि हमारा है आर्किटेक्चर फंडामेंटल। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या है। ओके, तो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज आवर सेकंड सेशन एंड अब हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर फंडामेंटल। ओके, तो ये रहा इसका कोर्स मैप मॉड्यूल 1 आर्किटेक्चर फंडामेंटल। So there is a poll question. What is that? How far is your organization in your journey to the AWS cloud? So it is just a question asked before starting the session कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में AWS क्लाउड आप चालू कर रहे हो या आप काम करते हो ऑलरेडी या आप हम 100% AWS cloud use करते हैं. So this is a question for the students. Next, Module 1 Architecture Fundamental. Module 1 title slide Architecture Fundamental. Module 1 includes Lab 1 explore using the AWS API to deploy an EC2 instance. तो एक EC2 instance बनाएंगे इस चैप्टर के लैब सेशन के अंदर. ठीक है. Stakeholder feedback, CTO क्या कहता है? We need prototype on AWS as soon as possible. But ये वही भूमिका से start हो रही. But our team have to understand the big picture before they get started. What is the AWS infrastructure? What method can be used to build and operate our resources? It's critical we understand how to protect our resources from day one. हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे हमारे resources को एकदम सुरक्षित रख पाएंगे. Okay, so these are a couple of questions which we should have in our mind before going for this session. Okay, how can we integrate services with our existing application? What key services and functionality should we be aware of before diving any deeper? There are a lot of questions to answer, but right now we need to make sure we are pointed in the right direction. CTO. तो ये सवाल CTO ने पैदा किए. Module objective है हमारा. How can we be sure we build our cloud infrastructure according to the best practice? How can I control access to my cloud resources? कैसे मैं अपने cloud resources पर control रख सकता हूँ? Okay. और how is AWS global infrastructure organized? Who or what will control where our resources run? तो हमारे resources कहाँ पर चलेंगे और कौन कंट्रोल करेगा? ये कुछ सवाल के जवाब इस मॉड्यूल के अंदर मिलेंगे. ओके, तो ये है हमारा सबसे पहले मॉड्यूल का आर्किटेक्चर. तो क्या क्या है? यूजर क्लाउड 53 मतलब DNS क्लाउड फ्रंट, Amazon S3 जो कि लाइक हार्ड डिस्क. ओके, इंटरनेट गेटवे, इलास्टिक लोड बैलेंसर, नेट गेटवे, public subnet net gateway, app server, order scaling group, app server, then EFS mount point, data subnet, memcache, RDS primary and Amazon EFS. तो ये सारी सर्विसेज है जो कुछ इस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से. ओके, तो अब ये सारी चीज हम इसके अंदर में इस प्रोग्राम के खत्म कर सकते हैं. इन सारी रिलेटेड एंटिटीज को, कंटेंट्स को या सर्विसेज को किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं ये जानेंगे. ओके, ऑलराइट. तो
और सोल्यूशन के अंदर में क्या है, AWS सर्विसेज, AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। तो ये 3 चीजें हैं जो कि हम इस सेशन के अंदर में जानेंगे और फिर लैब भी करेंगे। AWS सर्विसेज यूजर स्टोरी क्या बोलता है, which AWS services should I consider and how do I manage them? एप्लीकेशन डेवलपर का सवाल बनता है कि मैं कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकता हूँ और कैसे मैं उनको मैनेज करूंगा। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, तो AWS सर्विस, which AWS services to adopt? AWS सर्विसेज की कैटेगरीज क्या क्या है, बिल्ड मेथड क्या क्या है, मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड सर्विसेज कौन सी होती है, और सर्वरलेस सर्विसेज क्या होती है। ये हमारे पहले भाग में AWS सर्विसेज के अंदर में हम जानेंगे। तो AWS वेब सर्विसेज के ग्लोबल डेटा सेंटर है, 200 से ज्यादा सर्विसेज है, सिक्योर एंड रोबस्ट है, मतलब सिक्योरिटी के अंतर्गत इज क्वाइट गुड, पे एज यू गो, बिल्ट फॉर बिजनेस नीड, और किसी भी प्रकार के बिजनेस नीड के लिए बिल्ट है। ऑलराइट, तो ये इसके अंदर समझाया है। AWS is world most comprehensive and adopted cloud platform. AWS offers services such as compute, database, and storage. AWS pay-as-you-go model and its security practice have made AWS the preferred cloud solution for the business and public organizations, for business entity और public organizations like government और etc. के लिए ये जो 3 प्रकार की सर्विसेज बताई है मेजरली, ये सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी इस्तेमाल करोगे आपको फ्री, पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। AWS has been delivered cloud services to customers around the world, running a wide variety of use cases. AWS has the most operational experience of any cloud provider and at a greater scale. AWS has an unmatched experience, reliability, performance, security. But yeah, AWS is the oldest one of the cloud computing. In last almost 12 plus 1, 13, 14 years, they have gone through a 15 year, in fact, 2006, they have gone through a lot of things. कई सारी इन्होंने चीजें एक्सपीरियंस की, और the scalability, ये इतने बड़े प्रोवाइडर हैं, इनके पास में काफी सारे सर्विसेज है और काफी सारे कस्टमर है, तो काफी सारे एक्सपीरियंस भी इनके पास में, और ये टाइम एंड अगेन their services are very good and security is also awesome. Millions of customers, small and large, are using AWS to lower cost, become more agile and innovative faster. AWS is continually accelerating its pace of innovation to invent entirely new technology you can use to transform your business. So, चूंकि इतने सारे कस्टमर है और इतना इसका पेस है, कस्टमर की भी कई रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन आती रहती है, तो जिस पेस से उनके कस्टमर वेट कर रहे हैं, उस पेस से बेहतर पेस में या ऑलमोस्ट उतनी पेस में Amazon भी ग्रो कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। तो दूसरा सवाल आप आता है इसके बारे में, व्हाई कस्टमर मूव टू AWS? क्यों मूव करेगा कस्टमर के पास कोई रीजन होना चाहिए कि वो अपने डेटा सेंटर में या अपने ऑन साइट के अंदर में मशीनें खरीद कर नहीं लगाए और AWS पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको रेंट करे, उसको रेंट दे। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन। ऑप्टिमाइज कॉस्ट, सबसे पहले यदि बात कॉस्ट, तो कॉस्ट जब आपने कोई मशीन खरीदनी नहीं है, पावर सिस्टम लगाना नहीं और रैक रेंटल देने नहीं, तो आपकी कॉस्ट अपने आप पे कम हो सकती है। मिनिमाइज सिक्योरिटी वेलनरेबिलिटी, तो मतलब मिनिमाइज सिक्योरिटी की जो
इश्यूज आते हैं उसको मिनिमाइज करना, रिड्यूस मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं कि आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था वो सारा आपने डेवलप किया नहीं, तो उसको डेवलप करने के लिए आपने एम्प्लॉय रखे नहीं, ठीक है। उसी प्रकार बाकी भी चीज़ों के लिए जो मैनेजरियल टास्क है वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। और कोई चीज़ आप डेवलप नहीं करो तो दूसरे संदर्भ में मैनेज करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, वो चीज़ अब आपके पास नहीं है क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अमेजन को दे रखी हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क जो है वो आपको काफ़ी कम हो जाता है, बेहतर क्या हो जाएगी चीज़ें, इसके सीमलेस। तो यदि आप एक ऐप डेवलपर हो और आपका ऐप जो है वो काफी सक्सेसफुल हो और आपने इन हाउस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, अगर आपने ऐसा कुछ किया हो और आपका ऐप आपकी सर्विसेज सक्सेसफुल हो, तो क्या करने का पड़ेगा आपको, स्केलेबिलिटी के लिए आपके पास स्कोप कम है, पहले आपको मशीनें लगानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी और फिर उसको आपको ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अमेजोन के पास जाते हो तो आप विद इन मिनट आपके सीपीयू प्रोसेसर स्टोरेज एक्सेट्रा को स्केल अप कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, जैसे क्लिक ऑफ समथिंग, जैसे क्लिक ऑफ बटन, ओके। तो स्केल टीम जैसे बड़े आसान स्केल जगह इंक्रीज इनोवेशन कई सारा आपका अमेजोन भी देगा और आप भी जब फोकस होकर अपना काम करोगे तो आपके काम के अंदर में आपके इनोवेशन हो जाता है, एक्सेलरेंट टाइम टू मार्केट। और क्योंकि यही सब चीजें होंगी जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका फास्ट तैयार हो गया, इजीली तैयार हो गया, क्विकली तैयार हो गया, तो आपने जो मार्केट को डिलीवर करना वो चीजें आपके डिलीवर इन लेस टाइम चाहिए, ठीक है। ये सब इसके अंदर में किया हो, फोकस ऑन मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, माइग्रेट एंड फ्री अप रिसोर्सेज, एंश्योर सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड डिजाइन, stop spending money or running and maintaining data center, trade capital expense for variable expense, get organized for speed and agility in manageable way, choose among a variety of pay as go services based on the business need, meet substantially goals. यही सब रीजन है आपके why customers move to AWS technology. Now, what are the categories of AWS services? AWS service categories कहते हैं, तो इसके अंदर में काफी सारी सर्विसेज है, उन कैटेगरी सर्वरलेस कैटेगरी हो, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी हो, डेटाबेस हो गई, सिक्योरिटी आइडेंटिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, स्टोरेज, AWS कॉस्ट मैनेजमेंट, कंप्यूट कंटेनर्स, मशीन लर्निंग एंड यूजर कंप्यूटिंग, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, बिजनेस, तो बहुत सारी सर्विसेज इनके पास अवेलेबल है जो आप इस लिंक पे जाके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कैटेगरी की बात यहाँ रखें। AWS आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान, रिसर्च एंड बिल्ड, तीन चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। Solution architect are responsible for managing an organization's cloud computing architecture. They have in-depth knowledge of architecture principles and services used to deploy the technical cloud strategy based on business need, assist with cloud migration effort, review workload requirement, provide guidance on how to address high risk issues. तो ये सारे काम जो है आप जब आर्किटेक्ट बनेंगे तो आपको करना होंगे। So deploy and the technical cloud strategy based on the business need। पहला है assist with cloud migration, मतलब आपने अगर डाटा सेंटर पहले है आपके पास और अब आप जा रहे हो इसके ऊपर क्लाउड के ऊपर में, तो आपको उसमें हेल्प करने के लिए वर्कलोड रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और रिस्क एनालिसिस करना आपको चाहिए। वापस से वही आर्किटेक्चर तो पहले देखा था, वही वाला आर्किटेक्चर है, और कहना यह है कि एयर आर्किटेक्चर मस्ट नो व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल एंड हाउ दे इंटरकनेक्ट। तो एक आर्किटेक्चर को ये चीज पता होनी चाहिए और एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड thoroughly क्या है, कौन सी सर्विसेज connected as the architecture diagram is a roadmap to outline your software system. This includes a relationship, constraint, and boundaries between the elements. Your ability to draft and explain diagrams will facilitate better communication between you and your team. तो अंततः आप
जानकारी पूरी हो जाएगी और आप अपनी टीम के अंदर डिस्कस कर पाओगे। कनेक्टिंग टू द ASW सर्विस, तो इसको कनेक्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है AWS मैनेजमेंट कंसोल, मतलब AWS मैनेजमेंट कंसोल की बात, इसके अंदर हम गए, ये मैनेजमेंट कंसोल है आपका, और आप यहाँ से AWS की सारी सर्विसेज को डिप्लॉय एंड मॉनिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा, ठीक है। AWS मैनेजमेंट कंसोल। दूसरा क्या है, AWS कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये दूसरा जो तरीका है वो है कमांड लाइन है। हमारे कमांड लाइन पर भी हम इसको AWS को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ये मैंने रन किया यहाँ, और जब आप इंस्टॉल कर दोगे इसमें, तो इस फॉर्म से आप AWS को मैनेज कर पाएंगे। क्रिएट मैनेज कॉन्फ़िगर सब कुछ ऐसे कर पाओगे। तीसरा जो तरीका है वो है AWS सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट किट, होते हैं SDK और CDK या क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये एक तरीका है जिससे आप जब आपको काफी सारा डिप्लॉयमेंट करना हो, व्हेन योर रिक्वायरमेंट इज ऑफ हायर स्केल, एक मशीन बनानी, 2 मशीन बनानी, तो इन दोनों का ऑप्शन, लेकिन आपको 100 मशीन बनानी है, 100 कंटेनर्स बनाने हैं, एप्स बनाने हैं, कुछ S3 या क्या बोलना चाहिए, आपका हार्ड डिस्क काफी सारी है आपके पास में, सॉकेट काफी सारे हैं आपके पास में, तो ये सब बनाने हैं। तो उस केस के अंदर में आप अगर मैनुअली करोगे तो पहले चीज ये हो जाएगी, आपको इट इज क्वाइट ह्यूमन एरर हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बार बार जाके आप कर सकते, आप बनाओगे ऐसा करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट से भी बनाओगे तो भी दिक्कत होने वाली, ठीक। So rather than doing it manually, you have an opportunity, you have a solution to go use cloud formation. Cloud formation के द्वारा, इनफैक्ट क्लाउड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बना सकते हो। डायरेक्टली स्क्रिप्ट यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन यू कैन बर्न, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इसको बोलते हैं कोड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो वो चीज का इस्तेमाल करके यू कैन डिप्लॉय एवरीथिंग। ओके, so these are some of the things which you can use in order to connect to the AWS services. Okay, next is AWS मैनेजमेंट कंसोल के बारे में हम यहाँ देखते हैं। क्या क्या कर सकते हो आप, सर्च कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, प्रायोरिटी पिन कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पर एक जगह पर अवेलेबल है। जो मैंने रिसेंट वाला, जो ये पहले रिसेंट वाला आ जाएगा, जो भी चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो अपने आप, और बाकी ऑल सर्विसेज की बात आप करोगे तो सारी की सारी सर्विसेज सारी, कोई भी आप इस मैनेजमेंट कंसोल को इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो, कोई सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हो, जो चाहे वो आप कर सकते हो, बट इट इज अ मैनुअल प्रोसेस विद GUI सपोर्ट आपको देना है। तो यहाँ सपोर्ट के लिए किसी पेज में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और इसके अंदर में भी एक CLI है। वो CLI जो मैंने आपको बताया था वो एक अलग हुई, और दूसरी CLI जो क्लाउड से यहाँ से आप कम कर सकते हो, तो वो कम अंडर द क्लाउड सर्विस। नेक्स्ट इज अनमैनेज सर्विसेज के एग्जाम्पल। अनमैनेज सर्विसेज में क्या है, Amazon EC2 virtual machine are unmanaged. Infrastructure is managed by AWS, but you control what happens to the infrastructure. And unmanaged service at AWS gives you access to the core service, but without support for customization. तो आप support customization नहीं कर सकते, ठीक है।
In the diagram, you can see an example of unmanaged database running on Amazon EC2 पर एक जो unmanaged database रन हो रहा है वो सारी की सारी आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेज सर्विसेज। तो मैनेज सर्विसेज के अंदर कौन सी स्केलिंग, हाई अवेलेबिलिटी, डेटाबेस बैकअप, ये सारी चीजें जो है ये मैनेज्ड एंड इट इज मैनेज्ड बाय AWS। एग्जांपल, होस्ट योर डेटाबेस ऑन Amazon database service as a managed device. AWS manage more operation with managed services. You are responsible only for the application optimization. तो आपके पास में सिर्फ काम बच जाता है एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन का। आपने बहुत सारे काम जो है वो Amazon को उसकी जिम्मेदारी दे दी, ठीक। और मोर डिटेल के लिए लिंक है। आपको जो करना है वो, आपको जो मैनेज करना है वो है IAM परमिशन सभी चीजों के लिए, अकाउंट और क्रेडेंशियल की इंफॉर्मेशन such as primary database password, SSL, ASL और exception, user activity login, ये सब आपकी जिम्मेदारी application optimization general stuff. Now serverless services, serverless services का एक तरह से मतलब हुआ कि इसके पहले की जो भी हमने सर्विसेज देखी थी वो हम एक सर्विस के ऊपर में पहले एक सर्वर हम ले लेते हैं, बना देते हैं और उसके ऊपर चीजें डिप्लॉय कर देते हैं। यहाँ पर हमको अलग से कोई सर्वर बनाना है, हमको सिर्फ हमारा एप्लीकेशन उसके ऊपर सर्वरलेस सर्विसेज के ऊपर में डिप्लॉय करना है। और सर्वरलेस जो सर्विसेज हैं वो आगे देखेंगे। It is best to build modern application in a serverless environment. Serverless architecture is a way to build and run application and services without having to manage infrastructure. Your application still runs on server, but all the server management is done by the AWS के साथ। हालांकि आपके एप्लीकेशन रन तो सर्वर से करेंगे, लेकिन सारी जो जिम्मेदारियां हैं मैनेजमेंट की वो AWS की हो जाएगी। This strategy prioritize your ability to increase agility throughout your application stack. Your developer can focus on your core product instead of worrying about managing and operating server or runtime either in cloud or on your premise। तो यदि आपके premise की AWS का सपोर्ट है तो आपको सर्वरलेस जब आपने अप्लाई किया, आपने जब प्रोडक्ट सर्वरलेस किया है तो सारी जिम्मेदारी जो है आपकी नहीं होगी, AWS की होगी और आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऐप के ऊपर में फोकस करने की हो जाएगी जो आपका खुद का बिजनेस हो। So that is what is called as serverless. Next, documented resources आपको ये लिंक के ऊपर में जाके इसको स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। और काफी चीजें जो है ये चीज AWS के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको सारे AWS के अंदर जाके डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपने ऐसे लिखा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ओके, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको अवेलेबल है इन ऑर्डर टू डू ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर में आपको जिस चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लाउड, कंटेनर, स्टोरेज, डेटाबेस एक्सेट्रा सभी चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। नेक्स्ट इज AWS इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर स्टोरेज। अब हम दूसरे इसके करना है AWS इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज। सवाल क्या है, who and what will control where our resources are running? Also, latency is growing issue for our global customers. दो थियरी है। पहले नंबर की कि कौन और कैसे, कौन और क्या, who and what, कौन और क्या कंट्रोल करेगा हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है। दूसरा हमें लेटेंसी चाहिए कम, तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। AWS infrastructure user story and infrastructure manager say who or what will control where our resources run. Also, latency is growing
issue for our global customers? तो इसका जवाब है डेटा सेंटर कहाँ है ये तो हालांकि जो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता होती, जैसा इंडिया में है तो हमारे मुंबई में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटा सेंटर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी जोन, दूसरा हो जाता है रीजन, तीसरा हो जाता है AWS लोकल जोन, और चौथा हो जाता है क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन। जो सवाल पूछते हैं उन सारे के जवाब रीजन के अंदर। सवाल नंबर 1 था डेटा सेंटर के बारे में। AWS सर्विस ऑपरेट विद इन AWS डेटा सेंटर। AWS डेटा सेंटर के अंदर में AWS सर्विस चलती है। डेटा सेंटर होस्ट थाउजेंड ऑफ सर्वर्स। डेटा सेंटर में हजारों सर्वर होते हैं। ईच लोकेशन यूजेस AWS प्रोप्राइटरी नेटवर्क equipment. Data center are organized into availability zone. तो अभी इन डेटा सेंटरों को अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ओके, तो जैसे मुंबई का डेटा सेंटर तो वो एक अवेलेबिलिटी जोन हो गया। ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है। AWS implement control with automated system and conduct third-party audits to confirm security and compliance as a result is most highly regulated organization in the world trust है। तो ये सब चीजें भी जो 2006 से चालू हुई। ओके, तो AWS इम्प्लीमेंट करता है, कंट्रोल करता है, ऑटोमेट करता है और ऑडिट भी करता है अपनी सारी डेटा सेंटरों को, और इसी कारण से ये सबका वेल ट्रस्टेड एक सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन क्या होती है? डेटा सेंटर इन ए रीजन डिजाइन फॉर फॉल्ट आइसोलेशन, डिजाइन फॉर फॉल्ट आइसोलेशन, इंटरकनेक्टेड यूजिंग हाई स्पीड प्राइवेट लिंक। कनेक्ट करते हैं आपस में हाई अवेलेबिलिटी के लिए, हाई स्पीड लिंक से कनेक्टेड है। तो एक जैसा हमारा हो गया वेस्ट हो गया जोन, ठीक है, मुंबई। अब मुंबई के अंदर में 4 डेटा सेंटर लगे होंगे अलग अलग जगह पर, वो आपस में हाई स्पीड कनेक्टेड हो, ताकि कभी एक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वे आपस में उसकी सर्विसेज जो है उस डेटा सेंटर को किसी दूसरे डेटा सेंटर में चल रहा है। ओके, यूज टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी मतलब अगर आउट हो गया तो दूसरे वाले डेटा सेंटर से सर्विस चल जाएगी। मैं रीड करता हूँ। Availability zone are multiple isolated area within a particular geographic location. When you launch an instance, you can select an availability zone or let AWS choose one for you. If you distribute your instance across multiple availability zones and one instance fail, you can design your application so that an instance in another availability zone can take the request. तो अगर कोई एक availability zone में आपका फेल हो गया, में आपकी सर्विस फेल हो गई, तो यू शुड डिजाइन अ नेटवर्क इन सच वे कि आपने उसका बैकअप कर रखा है या उसकी हाई अवेलेबिलिटी कर रखी दूसरे यूएस के साथ में, और आपकी सर्विस को 10 मार्क्स कर रहे हो। तो नाउ व्हाट इज रीजन? रीजन किसे कहते हैं? इसे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूज AWS नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हैव 2 और मोर अवेलेबिलिटी। एक रीजन के अंदर में 2 या 2 से अधिक अवेलेबिलिटी होगी। एक रीजन अपने आप में एक रीजन दूसरे रीजन को बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, और एक रीजन के अंदर में एक से ज्यादा 2 से ज्यादा अवेलेबिलिटी होते हैं। तो हमारा जो मुंबई रीजन है उसके अंदर में 2 अवेलेबिलिटी ईस्ट और वेस्ट करते हो, राइट। तो इस तरह से रीजन बने हुए। When you view your resources, you see only the resources that are tied to your region that you specify in the console. This is because regions are isolated from each other and AWS does not automatically distribute resource across the region. तो देख, हमने जो हाई अवेलेबिलिटी करी थी वो AZ के अंदर में करी, ठीक है, जोन के अंदर में करी, लेकिन रीजन के अंदर में कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है। ऑटोमेटिकली आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, 2 जगह 2 रीजन में आपके रेप्लिका डाल सकते हो। You can run application and workload from a region to reduce latency to end user. You can do this while avoiding the upfront expense,
long-term commitment and scale challenges associated with maintaining an operation global infrastructure. Global infrastructure आपको मिल गया, फिर आती थी एक्सपेंस के या मैनेज। नाउ फैक्टर क्या है जो आपके रीजन सिलेक्शन पे असर करे? तो पहला फैक्टर हो जाता है कि भाई जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल रिक्वायरमेंट, वो हमारे को प्रोत्साहित करती है या नहीं प्रोत्साहित करती है किसी एक रीजन को इस्तेमाल करने के लिए, किसी एक कंट्री को इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा लेटेंसी, अगर आपके यूजर सारे इंडिया के अंदर में ना और आपने आपने यूएस के अंदर में रीजन सेलेक्ट कर लिया, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ लेटेंसी। So it is a wise choice to to develop your like develop your application or to install your application in this region itself. मुंबई में लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज क्या है? सर्विस अवेलेबिलिटी। तो सर्विस ऐसी हो सकती है जो आपके रीजन में हो ही नहीं। अब जब हो ही नहीं तो फिर आपको यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन फॉर इट। तो जो मेजर जो है सारी सर्विसेज सब जगह पर, बस इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सर्विसेज जो भी आती है वो कुछ स्पेसिफिक जगह में यूएस में पहले, यूएस की भी ओईओ में पहले स्टार्ट होती है, देन gradually it started because they are got many regions, right? So it is not possible to implement or test or beta version वगैरह भी सारा का सारा हर एक रीजन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, दैट इज नॉट फिजिबल एट ऑल। तो पहले कहीं और होती है, फिर बाद में फिर ग्रेजुअली कर दिया गया है। So this is another option which will make you to think of your choice. ओके, देन कॉस्ट में भी फर्क आ जाता है, अलग अलग रीजन के, ऐसा नहीं कि रेट भी एक जैसे होंगे। ओके, तो जो यूएस में जो न्यूयॉर्क होगा वहाँ की कॉस्ट अलग होगी, और यूएस में जो दूर का एरिया होगा जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, समथिंग लाइक दैट, उस जगह पर आपको इट इज you will see the difference in the cost. So it depends on you, what do you like, on what you decide. Less latency or latency is okay, and but it is going to save you a lot of cost, then you go for it. Okay, so this is one of another criteria to choose which region you are going to deploy. Okay, AWS local zone अब होता है AWS local zone, ये क्या होता है? Media and entertainment. There are some examples given here. AWS local zone can be used for high demand application that require signal single digit millisecond latency। तो ये लोकल जोन का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी लेटेंसी, तो ये सब चीजें इस केस में आप क्या करेंगे कि AWS लोकल जोन का इस्तेमाल करेंगे। लोकल कंप्यूट connectivity to the service, delivering new low latency. These are some of the reasons why we would like to go for a local zone. Okay. Next is edge location. तो edge technology जो है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो हमारा जो कंज्यूमर, हम चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज जो है उस जगह पर जाए जहाँ पर हमारा कंज्यूमर। So that is what is called as edge location. So edge location उसके perspective, customer के perspective क्या है? Edge location run in major city around the world, support AWS service like Route 53 and CloudFront. तो CloudFront और Route 53 का इस्तेमाल करके क्या होता है कि आपकी लेटेंसी और रिड्यूस हो जाती है, और आपकी जो ऑन द बेसिस, फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया, हमने कोई हमारी सर्विसेज जो यूएस पे रन हो रही थी, लेकिन अचानक वो चीज हमारे यहाँ पर इंडिया में इंडिया के अंदर में क्या हुआ कि इट प्रोग्रेसिवली इट इम्प्रूव्ड, एंड अब हमारे यहाँ इंडिया में भी वो चीज चल रही। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई एंड यूज CloudFront एंड Route 53 DNS, और उसमें DNS में हम अपडेशन ये कर देंगे कि जो भी उस सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा होगा वो
अब वहां नहीं जाएगा, यूएस नहीं जाएगा। ट्रैफिक won't go to US now after using this services, और इंडिया से इंडिया में ही वो आपको डिलीवर हो जाएगा। तो उससे होगा आपकी लेटेंसी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लोकेशन। नेक्स्ट इज यूज केस जो है, यही यूज केस है, यू यूज edge location to serve content closer to your customer. This diagram show an example of video file stored in AWS S3, Amazon S3 in South America. The video file is served faster to the customer in Asia. The file is cached to an edge location near the customer. तो यहाँ पर कैशिंग हो गई होती है। ये वाली फाइल जो थी एशिया में, अब उसकी जरूरत पड़ी तो एज लोकेशन पे जाके कैश हो गई थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी जो कैश रहेगी और आप सारा के सारा डाउनलोडिंग यहीं से ही हो जाएगी। ओके, तो AWS लोकल जोन एंड एज लोकेशन का डिफरेंस क्या है? AWS लोकल जोन मतलब लो लेटेंसी, लोकल डेटा प्रोसेसिंग, कंसिस्टेंट AWS एक्सपीरियंस। ठीक है, एक जैसा ही एक्सपीरियंस रहेगा इसके अंदर में, लोकल में प्रोसेसिंग होगी। इसके अंदर में क्या होगा? कैशिंग डेटा है, ठीक है, फास्ट डिलीवरी टू द कंटेंट, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। व्हाई शुड यू यूज AWS लोकल जोन? तो ये दोनों में थोड़ा slim difference or thin line between both of them, that's why it is explained over here. तो ये क्या है? You should use AWS local zone to deploy AWS compute storage database and other services closer to your end user for low latency requirements. With AWS local zone, you can use the same AWS infrastructure, service app and tool set that you are familiar with in the cloud. When should you use edge cloud? तो ये फिर नॉर्मल सिनेरियो वाली बात होगी। हमने ये सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमने करीब रखा, हमारे कस्टमर के करीब रखा, लेकिन ये कब इस्तेमाल में आएगा? You should use edge location for caching of data to provide faster delivery of content to the user. Using edge location allow for a better user experience, providing faster delivery to the user at any location. तो कैशिंग आप तभी करते हो जब आप यूजर डेटा को फास्टली डिलीवर करते हैं। नाउ द टॉपिक इज वेल आर्किटेक्ट फ्रेम। तो ये जो सवाल उसका पहले पूछा था कि कैसे मैं अच्छा आर्किटेक्ट बनूंगा, तो उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई कि भाई हमारे पास में AWS के अंदर में क्या क्या हम सुविधा आपको प्रदान करते हैं जिससे आप एक अच्छे AWS वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को लर्न करो और आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हो। The question is, how do I know if my design is following best practice? I don't want to ask for your help for each change I make. Okay. तो ये जो है इस केस के अंदर ना वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क स्टोरी वो पूछ रहा है कि मैं कैसे करूँ। इसके लिए ये सारी चीजें जो है उसके पास में तो AWS well architect tool help cloud architect learn, measure and build using architectural best practice के पास सारे tools हैं। सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ये सब देखने के लिए ये लिंक दी हुई है उसके अंदर में। वहाँ पर कई सारे हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करो और उसके बाद में yourself measure it and you will understand that this is going to be the best solution which I should be to the team. Okay, तो यही सब टॉपिक था इसके अंदर में। ये क्योंकि वापस से सेशन बड़ा हो जाएगा, I would break this session now. ओके, इसके अंदर में लेकिन यही सब चीजें बताई हुई है और ये जो लिंक दी हुई है अलग अलग टूलों के लिए, फॉर इंस्टेंस के साथ ब्लॉग, वेरियस अदर टूल्स जिन्हें खोल के रखा हुआ है। ये लैब है, देखो 100 ऑफ लैब, 200 लैब, 300 लैब, हेल्प रिसोर्सेज। So you will have a lot of things, lot of support to understand the architect job role, profile and task, और उसको आप प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी ये हो जाएगी लिंक करेगी कि आप एक अच्छे आर्किटेक्ट बनोगे। अब कुछ सवाल है इसके अंदर में
उसके बाद मैं खत्म करता हूँ. What ISV automation platform deploy AWS resource at scale? मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बहुत मात्रा में ISV इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को इस्तेमाल करके रिसोर्स इंप्लीमेंट करते हैं. जवाब है इसका क्लाउड फॉर्मेशन. ठीक. नेक्स्ट है, which of the following are cluster of data center within a geographical location with low latency network connectivity? Low latency network connectivity वाले कौन से ऑप्शन geographical क्या है? availability. Next, which of the two factor do you consider when picking up AWS region? हम कौन से दो फैक्टरों का ध्यान रखते हैं जब हम कोई AWS रीजन? तो कौन कौन से हैं? लोकल डेटा रेगुलेशन और लेटेंसी टू एंड यूजर. कुछ और भी दिए हुए थे वो क्या करना. ठीक, ये हमारी स्लाइड में था. सब कुछ पीछे स्लाइड में था जो हमने पढ़ा वही. व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डिप्लॉयिंग योर एप्लीकेशन इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन? सही है, अवेलेबिलिटी जोन में अगर आपने आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय किया तो आपको क्या फायदा मिलेगा? हाई अवेलेबिलिटी पर, मतलब एक यहाँ पर खत्म हो गया कुछ तो ये दूसरी जगह पे आप रन कर सकते आपके एप्लीकेशन. The principle of least privilege is a principle under which well architect framework pillar. इसके अंदर किस पिलर के अंदर में लीस्ट प्रिविलेज वाला प्रिंसिपल बताया गया? दैट इज सिक्योरिटी के अंदर. एंड दैट्स इट एंड ऑफ द मॉडल. मैं इसमें लैब भी करने वाला था बट आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस वन. द नेक्स्ट वन विल बी द सेम नेम बट lab. Okay. So I hope it was an interesting session. आपको आनंद आया हो and you have learned something. Okay. So thank you very much for